نظام کو نیچے لانا، اس کو گرانے کی جو ہے قسم کھائی ہے، ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے۔ سارے فراڈیے اور ٹھگ اکٹھے کر کے ہمارے حکمران بنا دیے گئے ہیں، ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی مغرب کا وقت ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے ہم جو ہے۔ اس کے لیے ہمیں اگر اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑے تو یہ بڑی تھوڑی قیمت ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کو اناڑی کہنے والے سارے سینئر موسٹ کھلاڑی آج سر جوڑے بیٹھے تھے کہ عمران خان کو کیسے نکالیں۔ جی ہاں، پاکستان کی پوری 11 جماعتیں ایک طرف اور تنہا عمران خان دوسری طرف، مگر پھر بھی لگ یوں رہا ہے کہ پلڑا ابھی تک خان کا ہی بھاری ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں عمران خان کو پارلیمان کی توقیر سکھانے والے جناب خواجہ آصف صاحب بھی آج یہ کہتے سنائی دیے کہ اب پارلیمنٹ میں بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے۔ جی ہاں، 13 دسمبر بروز اتوار ٹھیک 4 دن کے بعد عمران خان کی چھٹی کرانے کے دعوے دار آج مینار پاکستان کی گیلی گھاس سے گھبرائے ہوئے بھی نظر آئے اور شکوہ کرتے ہوئے بھی پائے گئے کہ حکومت ہوچے ہٹ کنڈوں پر اتر آئی ہے اور گریٹر اقبال پارک کی گھاس کو پانی دے رہی ہے۔ ناظرین، بادیوں نظر میں اپوزیشن 13 دسمبر کو لاہور میں حکومت مخالف تحریک کا آخری جلسہ کرنے جا رہی ہے، جس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جلسہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوگا اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے مگر قوم کو یہ بتانا بھول گئے کہ 2018 کے عام انتخابات میں آنے والے نتائج کس کے خلاف عوامی ریفرینڈم تھے۔ آج آخری اطلاعات کے مطابق پتہ چلا ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں فی الحال یہ اتفاق ہوا ہے کہ استعفے مولانا کے پاس جمع کرا دیے جائیں گے، پھر لانگ مارچ کے لیے نکلا جائے گا اور اسلام آباد پہنچ کر مولانا صاحب جب ضروری سمجھیں تو پہلے سے جمع شدہ استعفے اسپیکر اسمبلی کو بھیج دیے جائیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی یہ حکومت گراؤ مہم کس کروٹ بیٹھے گی، اس کا فیصلہ اب زیادہ دور نہیں، ٹھنڈے ٹھاٹ دسمبر اور جنوری میں آخر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیے ہوئے ہیں جی عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، انفارمیشن سیکریٹری ہیں پنجاب کی، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ مجھے جوائن کیے ہوئے ہیں جی ویری آنریبل ڈائنامک سٹنگ ایم این اے پاکستان تحریک انصاف سے یعقوب شیخ صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں روبینہ خالد صاحبہ، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، ون آف دا سین وائس اینڈ اے سینئر وائس فرام پاکستان پیپلز پارٹی، اسکائپ کے ذریعے میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید تینوں مہمانوں کو۔ عظمہ بخاری صاحبہ، آپ سب لوگ یعنی اپوزیشن یعنی آپ کی جماعت ہمیشہ یہ کہتی آئی ہے کہ عمران خان صاحب کھلاڑی ہیں، اناڑی ہیں، ان کو سیاست کیا کرنی آئی، تو پھر میں کھلاڑیوں سے آج پوچھوں کہ کھلاڑیوں کیسا لگ رہا ہے اناڑی؟ ایک طرف 11 جماعتیں ہیں سر جوڑ کے اکٹھا بیٹھیں گے اور ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ حتمی خبر کیا نکلی ہے، اور دوسری طرف تنہا آپ کے بقول آپ کی نظر میں کھڑا ہوا وہ اناڑی جس کو گرانے کے لیے آپ سب سر جوڑے بیٹھے ہیں، لیکن پلڑا پھر بھی انہی خان صاحب کا بھاری لگ رہا ہے۔ جی عظمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بینش۔ مجھے کم از کم آپ سے تو توقع نہیں تھی کہ آپ کو عمران خان صاحب جو ہے وہ تنہا لگتے ہوں گے۔ عمران خان صاحب تنہا ہوتے تو یہ 24 گھنٹے کی مار نہیں تھے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ کھلاڑی جو ہے وہ اناڑی ہے، بالکل ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس اناڑی کھلاڑی کے ساتھ سلیکٹرز بھی ہیں، اس کے ساتھ امپائر بھی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مل کر اس اناڑی کھلاڑی کو جو ہے وہ پچ پہ کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ تو جتنی معصومیت کا انٹرویو آپ نے دیا ہے، مجھے آج ہنسی آ رہی تھی اس کے اوپر کہ بینش جو ہے اس کو نہیں پتا کہ عمران خان تنہا ہے یا نہیں ہے، اور اگر تنہا نہیں ہے تو ان کے پیچھے کون ہے۔ وہ خود کہتے رہتے ہیں میرے آگے وہ کھڑے ہیں، میرے پیچھے وہ کھڑے ہیں، میرے منشور کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، تو وہ خود بتاتے رہتے ہیں۔ جہاں تک بات آئی یادگار کی، آپ نے بات کی کہ ہم کو پریشان ہیں یا ہم نے شکوہ کیا ہے، قطعاً نہیں۔ ہم تو اس حکومت کے زور بازو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا بھی ہے۔ ملتان میں ان کو ہم نے دکھایا بھی ہے پھر اس کے بعد کہ جب آپ عوام کے خلاف جاتے ہیں پھر آپ کو پسپا ہونا پڑتا ہے، اور اتفاق سے آپ ملتان میں موجود تھی، میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ سو آپ کو اس دن آپ نے دیکھا کہ عوامی رد عمل کے خلاف کوئی حکومت نہیں جا سکتی۔ اب ان کو پتا ہے کہ لاہور کا جلسہ تو ہو کے رہے گا،
यादगार पे नहीं होगा तो यादगार के बाहर किसी सड़क पे होगा, और अगर जो है वहां पर भी कोई प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे फिर पूरे पंजाब में होगा, फिर पूरे पाकिस्तान में होगा, और वो मोटरवेज पे भी होगा, वो जीटी रोड पे भी होगा। अब ये वहां से कितने इनके जो है इनके और इनके मददगारों को कितनी इनमें हिम्मत है, यही देखने की बात है। सो हमने तो कल भी आपको ट्रेलर दिखाया है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहबा जब कल लाहौर में निकली है तो उन्होंने 13 जलसे किए हैं। आप एक जलसा कह रही हैं, उन्होंने कल ही 13 जलसे कर दिए, और अभी हमारे कुछ दिन बाकी है, तो फिल्म अभी बाकी है। इसलिए ये तो अभी एक ट्रेलर भी नहीं था, तो ये तो अभी अपने आपको टीजर भी नहीं दिखाया पूरा, तो अभी आप देखिए फिंगर क्रॉस कि क्या होता है। चलें जी, फिंगर्स क्रॉस। याकूब शेख साहब, आप वाकई घबरा गए हैं, डर गए हैं कि ये लोग पूरा मीनार पाकिस्तान, ग्रेटर इकबाल पार्क भर देंगे, और इसी वजह से आज हमने देखा कि पानी छोड़ा गया ग्रेटर इकबाल पार्क में। और अगर ये एक रूटीन का पानी है कि जिस तरह घास को पानी दिया जाता है, तो 4 दिन याकूब शेख साहब आप ना दें पानी, क्यों आप ऑपोजिशन को बोलने का मौका देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डेनिश अज़मा बुखारी साहबा ने जो बातें की हैं माशाल्लाह। अब उसके ऊपर मैं क्या तबसरा करूं? मैं तबसरा ये ज़रूर करूंगा कि जो लीडरशिप इनकी इस वक्त मौजूद है, जो धरने जो इस वक्त जलसे कर रही है और हुकूमत के खिलाफ जो एक एहतजाज की सूरत हाल बना रही है, पहली बात तो ये है कि ये सारे रिजेक्टेड लोग हैं। आप मुझे बताइए कि इनमें से इलेक्टेड कितने हैं, सिवाय 2-1 के जो बिलावल भुट्टो साहब हैं या एक आध और जो मेरे जहन में अमीर हैदर होती साहब है, उसके अलावा बाकी तो सारे जिनको अवाम ने बुरी तरीके से रिजेक्ट किया 2018 के जनरल इलेक्शंस में। दूसरी बात हमेशा आप याद रखें कि ये लोग किस एजेंडा के ऊपर इकट्ठे हैं। हर मूवमेंट का एक बेसिस होता है, और जिस मूवमेंट का बेसिस ये हो कि आपने चोरी बचानी है, आपने जो डाके मारे हैं वो बचाने हैं, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तो दैट इज सब्जेक्ट टू फेल, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और तीसरी बात यह है, ये आप जहन में रखें कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को गालियां देते चले आए हैं, एक दूसरे को गलियों में घसीटते नजर आए हैं, और हर इलेक्शन में बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ये इल्जामात लगाए हैं, और उसको इन्होंने कोर्ट में जाके फिर दायर भी किए हैं। वो केसेस जो नैब के पास केसेस हैं, वो सारे इनके अपने दायर करदा हैं। अच्छा। तो ऐसी सूरत हाल में ये जितनी भी पार्टियां, ये तो 11 हैं, अगर ये 1100 भी हो जाएं, इनका एजेंडा अवाम को अपील हरगिज नहीं करता। कोई एजेंडा ऐसा हो जो अवाम को अपील करे, जो अवाम के लिए हो, उसके लिए अवाम घर से निकले, उसके लिए अवाम जान दे, उसके लिए अवाम जिहाद करे। इनकी ये टाइम फिश ये हो रही है, और ये खत्म हो जाएगी। इस वजह खत्म हो जाएगी। वो एजेंडा कौन सा होता है वो भी बता देना। देखिए, एक कौमी मकसद होता है, एक कौमी मकसद होता है किसी प्रोटेस्ट के लिए, किसी एहतजाज के लिए, पाकिस्तान के लिए को बहुत कुछ करना चाह रहे हूं, और वो ऐसा बंदा हो जिसका अपना माजी बिल्कुल साफ सुथरा हो, वो शीशे की तरह साफ बंदा हो, वो आगे आए। याकूब भाई, आपके खान साहब तो 4 हलकों के लिए निकल आए थे, आज आप मुझे नेशनल इंटरेस्ट की बातें बता रहे हैं। सही बात है, सही बात है। चले आगे आपका पॉइंट। मैं जरा रुबीना साहिबा की तरफ चले जाऊं, फिर वापस आपको जरा शामिल करती हूं। रुबीना साहिबा, आज इमरान खान साहब, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ अपने पत्ते शो किए हैं। मसलन क्या, वो कह रही हैं कि भाई ऑपोजिशन इस्तीफे देगी, ये पूरा पीडीएम ग्रुप, तो मैं इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूं। ये खून मांगते हैं, तसादुम हो, मैं तसादुम नहीं होने दूंगा। वो भी पूरी फॉर्म में है। एक तरफ 11 जमातें रुबीना साहिबा, एंड अ पर्सन लाइक यू हु इज सो सेन, आप मुझे खुद बताएं, एक तरफ अकेले इमरान खान, क्या ये कोई तगड़ा मुकाबला है? क्या ये कोई बैलेंस का मुकाबला है? फिर भी इमरान खान का पलड़ा भारी है। अच्छा रुबीना साहिबा, देखिए ये हाँ। जो 11 जमातें आप बार बार गिन रही हैं, ये 11 जमातें वो सियासी कुव्वतें हैं इस मुल्क की, जिनके वोट पे डाका डाला गया है 2018 के इलेक्शंस में। और मेरे भाई ने अभी बात की कि कौमी मकसद, पहले तो ये डिफाइन करें ना कि कौमी मकसद है क्या। कौमी मकसद ये है कि आप 124 चोरी के अलावा सब कुछ हो सकता है कौमी मकसद नहीं। वो देखें, जो चोरियां आप लोगों के सामने आ रही हैं, अपनी बारी पे आप बात कीजिएगा, वो जब सामने अभी से आने शुरू हो गई है, बिलियन ट्री सुनामी की जांच पड़ताल शुरू हो गई है, बीआरटी की बेकायदगियों की रिपोर्ट आ चुकी है, और जो सबसे बढ़कर एक अलमनाक वाकया है पेशावर केटीएच का, उसने भी आपका पोल जो है ना खोल के रख दिया है।
تو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ قومی مقصد کیا ہوتے ہیں اور قومی مقصد کیا نہیں ہوتے. اور مہربانی کر کے اپنا جو نیریٹو ہے, اپنا جو بیانیہ ہے, جو آپ کہنا چاہتے ہیں, جو آپ ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں, وہ سامنے رکھیں. دیکھیں سارا دن اگر آپ بی نیشن کے پروگرامز دیکھیں تو 24 گھنٹے یہ ہمیں اور پی ایم ایل این کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری پاسٹ میں, ماضی میں کوئی دشمنیاں تھی آپس میں, ہمارا جو ہے ہم نے یہ کہا تھا, ہم نے وہ کہا تھا. لیکن آپ کی وہ میرے خیال میں پنجابی کی ہی ایک کہاوت ہے کہ جو ماں سے زیادہ چاہے وہ پاپا کو کھلائے. بھئی ہمارا مسئلہ ہے, ہم ایک دوسرے سے اگر ناراض تھے یا ابھی نہیں ہیں, that is something between two parties, تیسرا تو اس میں کسی کا کام نہیں ہے. اور وہ جو ہے لارجر انٹرسٹ میں جو وہ تباہی کی سیاست تھی, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بی بی شہید اور میاں نواز شریف اس کو ختم کر چکے تھے. اب یہ جو انہوں نے منافقت کی, منافرت کی اور نفرت کی جو سیاست اس ملک میں یہ لے کر آئے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے وہ اس کو کتنا ٹائم لگے گا. معیشت تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی سنبھل جائے گی, لیکن جو اخلاقی بگاڑ, جو نقصان انہوں نے ہماری اقدار کا کیا ہے, اس کو تو پتہ نہیں کتنی دہائیاں لگیں گی ٹھیک کرنے میں. جو قوم کا اخلاق بگاڑا ہے انہوں نے, جو قوم کا لب و لہجہ بگاڑا ہے انہوں نے, جو سیاست کے اندر یہ لے کر آئے ہیں, جس قسم کی بات چیت اور گفت و شنید اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا اور منہ پہ ہاتھ پھیرنا, یہ چیزیں جو ہیں یہ تو زہر قاتل ہے کسی بھی معاشرے کے لیے جو انہوں نے انٹروڈیوس کی ہیں. باقی رہی پی ٹی ایم کی بات, تو پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہے وہ سب کا فیصلہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ کہا ہے عظما نے, یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے اور فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہی ہے. تو اسی سے جو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا گورنمنٹ کی بکھلاہٹ کا. کل تو وہ وزیر اعظم صاحب بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ ٹویٹر میں جتنے لوگ تھے ان سب کو ان فالو کر گیا. پتہ نہیں کیا پریشانی تھی ایسی ذہن پہ, اتنا دباؤ تھا ذہن پہ. تو کون سی, تو یہ ساری باتیں جو ہیں, کس کی, میاں نواز شریف صاحب کسی کو فالو نہیں کرتے نا, تو انہوں نے نقل مار کے کر لیا, اور نے کہا میں بھی ذرا اس طرح لیڈر بن. اوہو اچھا, ان کی نقل میں زیرو فالوئنگ کی ہے. جی روبینہ صاحب کمپلیٹ کریں, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جی روبینہ صاحب دیکھیں اور ویسے, اور سوری وہ ایک جملہ بھی ہے نا, وہ جو نشے کی جب کیمپین چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں تنہا نہ رہ جائے, کچھ اس ٹائپ کی بات بھی ہے. دیکھیں بینش, جو ایک ہی ہوتا ہے, جابر اور ظالم حکمران ایک ہی ہوتا ہے, اور اس کے خلاف ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جابر اور جو ہوتے ہیں نا اس طرح متعلق جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں. ڈکٹیٹرز کے ساتھ کوئی اور قوتیں نہیں کھڑی ہوتی. چلیے, یہ تو گھبراہٹ تو روبینہ صاحبہ, گھبراہٹ تو آپ کو بھی ہے, اسی لیے ابھی تک استعفے آئے نہیں ہیں, پی ایم ایل این دینے کے لیے تیار ہے. ہم اپنے وقت پہ سب کچھ کریں گے. چلیے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں معتبر پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوں گے. بریک کے بعد اسی سلسلے کو دوبارہ جوڑیں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, عظما بخاری صاحبہ اور یعقوب شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہے. عظما بخاری صاحبہ, اچھا خاصا ووٹ کو عزت دو کا اتنا پیارا, اتنا خوبصورت نعرہ تھا, لوگ آپ کی بات سن بھی رہے تھے, لیکن یہ آپ کون سی جمہوریت ہمیں پڑھانا شروع ہو گئے. پہلے کل کی بات ہے, عمران خان صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ جی میں پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں. آج کی بات ہے, خواجہ آصف صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ پارلیمنٹ میں رہنا ایک گناہ کبیرہ ہے. آئی ایم لائک فور گاڈ سیک, 2-2.5 سال ہو گئے, تنخواہ وڈرا کر رہے تھے, سارے ایم این ایز وڈرا کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب بڑے قابل احترام ہے میرے لیے, وہ تنخواہ وڈرا کر رہے تھے. 2.5 سال کے بعد ان کو خیال آ گیا کہ بھئی یہ اس پارلیمنٹ میں جانا تو گناہ کبیرہ ہو گیا ہے. یہ تو سراسر جو ہے لگ رہا ہے کہ ایک پرسنل اقتدار کی جنگ بن گئی ہے, اور نظام گرانے نکل پڑے ہیں آج تو خواجہ آصف صاحب. یہ کون سی جمہوریت آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں عظما؟ یہ وہی جمہوریت ہے جس جمہوریت کے تھرو یہ آئے ہیں, جس چیز کی بیس ہی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہو, اس کے اوپر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اخلاقیات کہاں ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنے بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ آر ٹی ایس کے تھرو نہیں آئے؟ بالکل آئے ہیں. کیا یہ ہمارے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ٹکٹیں واپس کرا کے نہیں آئے؟ بالکل آئے ہیں. کیا یہ امپائر کی انگلی ڈھونڈنے نہیں نکلے تھے ہمارے دورے حکومت میں؟ بالکل ڈھونڈنے نکلے تھے. اور یہ تمام چیزیں مینج کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ طریقے سے یہ یہاں تک پہنچے. اب یہ جہاں تک بات ہے, ان کو 2-2.5 سال ان انٹرپٹڈ ملے. ہم نے کہا کہ گو ہمیں بہت اختلافات ہوں اس الیکشن کی, اس کے اوپر یہ پورا پروسیس ہی بے شک غلط ہے, لیکن انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے, انہوں نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے,
इन्होंने 200 अरब डॉलर भी बाहर से लाने थे, इन्होंने IMF को जो है वो लात भी मार देनी थी, इन्होंने जो है वो कर्जा लेने की बजाय खुदकुशी भी कर लेनी थी, इन्होंने प्रोटोकॉल भी नहीं लेना था, इन्होंने जो है वो महंगाई ज्यादा होती है तो हुक्मरान चोर होता है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी ना। उसके बाद आज पाकिस्तान के हालात कहाँ हैं? आज पाकिस्तान बिल्कुल अकेला खड़ा है इंटरनेशनली भी, हमारे साथ कोई अपने इस्लामिक कंट्रीज के ब्लॉक हमारे साथ नहीं है। ये आपको हम 2 साल के कश्मीर बाद दबा सारी देते चीजें हैं। अज़मा याद आई हैं। ये जितनी बातें आपने गिनवाई मैंने बड़ी तसल्ली से तो सुनी। देखो ना, आपने ब्रिटिश ऐसे तस्लीम नहीं क्यों होता। किया उनका मैंडेट? अब आज आप इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, अभी भी दे नहीं रहे। तो ब्रिटिश बीवी, हाँ, अभी भी आप ब्रिटिश इस्तीफे बीवी दे के नहीं रहे साथ हैं। तस्लीम अज़मा एक कर मिनट, सकते एक तो मिनट, आपने ही एक मिनट, मुझे मुकम्मल करने दीजिए, फिर ऑब्वियसली मैं आपको टाइम दूंगी मुकम्मल करने का, वरना क्रॉस टॉक में फिर बात समझ नहीं आती। आज आप इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, मान भी गए हैं, जराए की माने तो वो ये कह रहे हैं कि भाई सारे इस्तीफे जो है मौलाना फजलुर रहमान को दे दिए जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आप हुकूमत ही ना बनाते, आप ओथ ही ना लेते, आप पार्लियामेंट में जाते ही ना। ये जो सारी बातें आपने मुझे गिनवाई, ये तो इमरान खान साहब पहले दिन से कर रहे थे। आपको 2.5 साल लगे ये चीज रियलाइज करने में। अब बात कर लीजिए। नहीं, हमें रियलाइज करने में 2.5 साल नहीं लगे, हमें इनको एक्सपोज करने में 2.5 साल लगे। हम चाहते थे कि जो तब्दीली का एक जो चूरन है ना, वो जरा अच्छी तरह बेच ले, और जो बहुत शदाई थे ना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो इनके लोग थे और खुद डेस्परेट होते थे, मियां साहब मेरी बारी आन दो। हमने कहा पता नहीं क्या कारनामा सर अंजाम देंगे, इस मुल्क को कहां से कहां ले जाएंगे, जहां हम छोड़ के गए हैं कम से कम वहीं से आगे ले जाएंगे। इन्होंने वो बेड़ा गर्क किया। आज देखिए ना, आज इन्होंने जो इंटरव्यू जिसकी आप कोट करी, जो आज उनकी कॉलमिस्ट के साथ मुलाकात हुई है, उसमें एक बात तो उन्होंने मान ली, उन्होंने कहा मेरे पे मुश्किल वक्त है लेकिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। अब वो आपको मालूम है कि वो कॉन्फिडेंट किस बात पे आता है उनको और किस चीज पे होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कॉन्फिडेंट हो या ना हो, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान के तमाम इदारों का। माना आज, अब देखिए ना, मासूम मुंह करके कह देते हैं वो हमसे ना लेट हो गए, IMF के पास हम लेट चले गए थे, फिर कहते हैं हम लेट हो गए, हमने गंदम जो है वो जल्दी नहीं मंगाई, हम लेट हो गए, हमने चीनी जो है वो बाहर भिजवा दी। ओ भाई, ये अंडर 19 की टीम जो है ये पाकिस्तान को कितने अरबों में पड़ेगी? LNG जो है उसका फैसला आप टाइमली नहीं करते, वजीर आजम एक डाकिये की तरह आते हैं और आके कहते हैं बड़ा संगीन बहरान आने वाला है। और भाई आपको बिठाया काहे के लिए है? आप हम जो है वो सारे मसाइल जो है वो आपकी शक्ल देख के लोगों के हल नहीं हो सकते। आपने पाकिस्तान की लोगों की जिंदगी मिजरेबल कर रही है। और आखिरी लाइन कह दूं, इस वक्त लोग ना कोई सियासत सुनने के लिए तैयार है और ना वो किसी तब्दीली का जो है वो मजा देखने के लिए तैयार है। वो सिर्फ इस बात पे है कि उनके मसाइल का हल होना चाहिए, और इनका एक एक दिन इस हुकूमत में रहना इतना भारी होगा इस मुल्क के लिए। इनके गलत और नाअहली की वजह से जो गलत फैसले ये कर रहे हैं वो पाकिस्तान को अरबों रुपए पर पड़े हैं। अब भी अगर हम खामोश रहे, आपने हमें नहीं खेलने दे रहा था, आपने कह रहा था देखिए अज़मा जी आप क्या कर रही हैं, इनको ठीक मौका है, तो दे, ठीक है, इनको परफॉर्म तो करने ओके, दे। अब 2.5 साल दे ओके, दिए ना, ओके, अज़मा आगे साहिबा हो 2.5 गया। साल में बता दे कितने घर बने, कितनी नौकरियां मिली, वो बता दे। आ गया आपका पॉइंट। याकूब शेख साहब, आपका रहना, आपकी जो हुकूमत है वो भारी पड़ रही है कौम पर। अब मैं क्या कहूँ इन मोहतरमा से, आज़मा साहबा से। बात यह है कि अगर शुरू करें ना कि इन्होंने असम्बली से बात की कि असम्बली शायद इन्होंने कहा है कि गैर कानूनी है या कहते हैं ज़बरदस्ती आई है, तो ये तो आज तक उसमें बैठे हुए हैं और इन्होंने उसके लिए कंटेस्ट भी किया है। पीपल्स पार्टी की इस वक्त गवर्नमेंट है सिंध में, और पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है कि ये रिग्ड इलेक्शन है? अगर रिग्ड इलेक्शन होते तो हम आपको वहाँ पे ना जीतने देते। और ये मैं आपको आज ये हकीकत बता भी दूं कि सिंध इंशाल्लाह नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में PTI के हाथ में आने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो सिंध का हाल किया है वो सारी दुनिया के सामने है। अच्छा। अब उसके बाद आते हैं असम्बली की तरफ। जो इन्होंने असम्बली की बात की, ये जो इनके लीडर इस वक्त बने हुए हैं खुद इस असम्बली से सदर का कैंडिडेट बन चुके थे, और वो उस वक्त बने थे जब एतजाज एहसन इनके मुश्तरका कैंडिडेट थे और हमारी तरफ से आरिफ अलवी साहब हमारे सदर के कैंडिडेट थे। और इन्होंने इन दो पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को बिठा के इनको यकजा करना था। और पता चला जनाब कि जब ये निकाह पढ़ाने के लिए गए तो ये खुद दूल्हा बन बैठे। तो इस असम्बली को वो कैसे कहते हैं कि ये एक गैर जमहूरी असम्बली है और गलत तरीके से आई है। आज भी उनके लोग, उनके मेंबर्स इस वक्त असम्बली में बैठे हुए इस वक्त तनख्वाहें ड्रा कर रहे हैं और असम्बली के मराहत से एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चूं चूं का मुरब्बा है, इनके जाविये मुख्तलिफ हैं, इनकी थिंकिंग मुख्तलिफ है, इनकी मैनिफेस्टो मुख्तलिफ है,
इनकी जो वोटर्स हैं उनकी थिंकिंग मुख्तलिफ है। ये आज लीडर्स अगर इकट्ठे हुए हैं तो किस वजह से इकट्ठे हुए हैं? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं बिनिश कि आप इन मोहतरमाओं से कहें कि मुझे 3 वजूहात बता दें कि जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि ये जमहूरियत ठीक नहीं है और आपके वाली जमहूरियत ठीक थी, सिवाय इसके कि ये ले आते हैं टमाटर का रेट बढ़ गया, और सिवाय इसके कि ये ले आते हैं चीनी का रेट बढ़ गया, और सिवाय इसके कि ये ले आते हैं गंदम का रेट बढ़ गया। इसके अलावा मुझे बताएं कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या नहीं किया। दिल पे हाथ रख के कहें कौन सा इदारा था जो इनकी दहशत गर्दी से जो महफूज रहा हो। इन्होंने PIA का क्या हशर किया आपके सामने, आज हमें ठीक करना पड़ा। इन्होंने PSM का सत्यानाश करके रख दिया, नालायक, और इन्होंने हड हराम लोग भरे जो किसी काबिल नहीं थे, इन्होंने भरे, आज हमें उसको ठीक करना पड़ा। मैं उन लोगों का नहीं कहता जो उसमें काम करने वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने मुकाबला किया कि हमने गंद भरना इन इदारों में। आप रेलवे को देख लें, आप किसी भी इदारे को उठा के देख लें, इन्होंने क्या किया इन इदारों के साथ। आज हमें कहते हैं कि 2 साल में इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को तबाह तो तुम लोगों ने किया है। 35 साल का हिसाब हम तुमसे आज इस वजह से ले रहे हैं कि तुम लोगों ने पाकिस्तान को उस नहज पे जाके खड़ा कर दिया जिसकी वजह से इसका अपनी टांगों पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैलेंज के तौर पे लिया है। हम पाकिस्तान के अच्छे दिन की कोशिश कर रहे हैं और हम अच्छे दिन लेके आएंगे। और जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जो इन्होंने इकोनॉमिक्स की बात की है, मैं एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट इनको बताना चाहता हूँ कि सारे इकोनॉमिक अशारे इस वक्त प्लस हैं। आप मुझे अगर इजाजत देंगे तो मैं एक की आपको जिक्र करके बता भी सकता हूँ कि आपकी जो पैरामीटर्स इकोनॉमिक है वो प्लस है, इस वजह से कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रेमिटेंसेस इंक्रीज हो चुकी हुई हैं। आपकी एक्सपोर्ट जो पहले हम मुझे आपका पॉइंट मिल गया है। यहाँ पर मुझे इसलिए आपको रोकना है क्योंकि ये परसेंटेज वगैरह ना मुझे समझ नहीं आती। हिसाब मेरा शुरू से कमजोर है और ये इकोनॉमी तो मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन अब मुझे रुबीना को शामिल कर रहा है। रुबीना, आई वांट टू गेट बैक टू पीडीएम से मुझे अभी ये खबरें मिल रही हैं, अभी क्योंकि सेशन अभी चल ही रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि भाई सिंध हुकूमत इस्तीफे नहीं देगी, फेडरल से इस्तीफे दिए जाएंगे। लेकिन ये एक ऑप्शन डिस्कस हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट इस्तीफे नहीं देगी, लेकिन जब भी इस्तीफे दिए जाएंगे वो आखिरी ऑप्शन होगा। वो जो आखिरी ऑप्शन है वो किस दिन के लिए आपने रखा हुआ है? क्या रोजे क़यामत आपने वो ऑप्शन इस्तेमाल करना है? कब इस्तेमाल करना है? वो आखिरी वक्त कब आएगा इस ऑप्शन का? देखिए, पहली बात तो बीनेश, मैं अपने भाई की बात से बड़ी महजूज हुई हूँ। इन्होंने जो निकाह का इस्तिलाह इस्तेमाल की, खैर इन लोगों से ज्यादा निकाह के बारे में किसी को क्या पता होगा, एक्सपर्टीज इनकी है ज्यादा इस सिलसिले में। देखिए, फिर बहुत सारी बातें मुझे भी करने दीजिएगा बीनेश। मेरे ख्याल में पर्सनल बातों में ना जाए। सेनेटर साहब, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप पॉलिटिक्स पे रहें, वो ज्यादा सही है। बात की आपने भी तो ये उस पे पॉलिटिक्स की क्या? तो फिर मैं बहुत सारे निकाह में आपकी पार्टी के लीडरान के भी गिनवा सकता हूँ। आप उस बात में ना जाए, आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप एजेंडा अपना बताएं। आपका क्या एजेंडा है जो आपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए किया हुआ है? क्या एजेंडा है? अब बात ये है कि इनको तो देखें, इनकी तो बता दें कि इनको गरीबों के मसाइल कोई मसाइल ही नजर नहीं आ रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं कि हम डिस्कस करते हैं कि अशिया जरूरत महंगी हो गई हैं, दवाइयां महंगी हो गई हैं। ये इनको मतलब इनको लगता है कि ये कोई मजाक की बातें हैं, इसमें कोई सीरियसनेस तो है ही नहीं। इसके ऊपर जो है ना बात ही न की जाए, लोग जो है फाकों से मर जाए, लोग बगैर दवाइयों के मर जाए, लोग और मसले मसाइल में बेरोजगारी से मर जाए, वो मसले ही नहीं है। देखिए, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी कंट्री एंड इकोनॉमी इज कि आप लोगों की कुव्वत खरीद से चीजें बाहर कर दे जो हो चुकी हैं। बाकी आपके जो सवालात हैं पीडीएम के हवाले से, वो बिल्कुल आप अभी तक तो कोई हतमी वहां से हमें नहीं मौसूल हुई बात। लेकिन देखिए, जब आप बैठते हैं, जब आप बात करते हैं, तो बड़ी तफसील से बात होती है हर पहलू से, क्योंकि ये एक बड़े सीरियस इशू है। कोई ऐसा नहीं है छोटी सी बात है कि बिल्कुल हम अचानक एक नी जर्क डिसीजन कर लें और बस उसके ऊपर अमल शुरू कर दें। ये हर पहराए से इसको देखा जाता है। जिस तरह मैं आपको लेजिस्लेशन की तरफ ले जाऊं कि इस पिछले 2 साल में कोई लेजिस्लेशन प्रॉपरली हम कर नहीं पाए नेशनल लेवल पे, क्योंकि वहां पे कोई ना डिबेट होती है, ना कोई डिस्कशन होता है, ना कोई कमेटियों में जाते हैं बिल, और लेजिस्लेशन को अचानक आके आपके सर के ऊपर बंदूक रख के खड़े हो जाते हैं कि ये मुल्क की मुफाद में है, इसको फौरन पास कर दें, क्योंकि हेस्टी लेजिस्लेशन इज अ बैड लेजिस्लेशन। इसी तरह हेस्टी डिसीजंस, और मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी पीडीएम के सब लीडर्स को कि वो इसको बड़े जो है ना उस पे सेर हासिल बहस करके
जो भी डिसीजन होगा वो करेंगे। अच्छा, मैं और बड़ी अगर ऑकवर्ड इस तरह पोजीशन का में हूँ, decision मुझे आया, मुझे मुझे ब्रेक लेनी है। मैं बड़ी इसलिए ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ कि अज़मा बुखारी, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, एंड इवन याकूब शेख साहब भी मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो हरा करके यहाँ पर आए हैं। अज़मा बुखारी साहिबा की अपनी एक स्ट्रगल है पॉलिटिक्स में, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा की अपनी एक स्ट्रगल है पॉलिटिक्स में। मतलब कितनी अजीब बात है कि यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं जी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है, वो तमाम जो ग्रेट माइंड्स है वो बैठ कर ये सोच रहे हैं कि भाई एक इमरान खान को भेजना कैसे है। 2014 का जो धरना अगर गलत था, उस टाइम पर अगर इस्तीफे की मांग गलत थी, तो 2020 के अंदर ये मांग ठीक कैसे हो सकती है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी। आखिरी, अज़मा बुखारी साहिबा, 2014 के अंदर वजीर आजम से इस्तीफा मांगना गलत था, तो 2020 में ठीक कैसे है? मुझे हैरत यह है कि मुझे पूरा घंटा गुजर गया आपके साथ ये कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए कि वो इलेक्शन आरटीएस के साये में नहीं हुआ था, और उस इलेक्शन के ऊपर इमरान खान साहब को 4 हलकों पे एतराज था, और वो इस इलेक्शन के तमाम तर हलकों के तमाम तर नताइज के बावजूद वो 4 हलके आज भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या थी, उस वक्त मईशत कहाँ खड़ी थी? उस वक्त आपको याद होगा कि चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कंटेनर से खड़े होकर कोशिश की कि वो लेट आए, जाहिर है लेट भी हुआ उनका दौरा, और फिर खड़े होकर कहा गया कि वो देखिए जी वो हमारी सालमियत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हमें कर्जा देने आ रहे हैं, फलाना करने आ रहे हैं। हालांकि उनके साथ हम मुख्तलिफ सीपैक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे। और अभी पाकिस्तान के हालात क्या है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त मुल्क के अंदर अनरेस्ट नहीं था। फिर बाकी बातें छोड़िए, अभी जो मेरे भाई ने कहा ना, मुझे मतलब यही है मेन पॉइंट हमारा, कि आम आदमी की, चूंकि आप वोटों से आए नहीं है, इसलिए आम आदमी की प्रॉब्लम्स का आपको अंदाजा नहीं है। क्यों करें हम आटे की बातें, क्यों करें हम प्याज टमाटर की बातें? वाकई आपके लिए बहुत गलत होगा, लेकिन हमारे लिए दुरुस्त है कि आम आदमी हमसे एक्सपेक्ट करता है, हम उनके नुमाइंदे हैं कि उनकी बात की जाए। अब जो 7 लोग माफ कीजिएगा, आपकी नाहली की वजह से कोरोना पे आपने शोर मचाया हुआ एक तरफ, दूसरी तरफ आपकी तैयारी ये थी कि आप ऑक्सीजन जो है वो तक नहीं प्रोवाइड कर सके खैबर टीचिंग अस्पताल के अंदर, और वहां पर जो है वो 7 लोग मर गए, आपने सिर्फ एक ताजियत कर दी, बात खत्म। मतलब आपको इंसानी जाने भी आपके लिए वो बिल्कुल, मुझे लग रहा है गाजर मूली हो गई कि कोई बात नहीं, अदरक 600 रुपया हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, आज टमाटर 130 रुपए मंगवाया मैंने, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ये यकीनन शेख साहब जैसे और जो इनके इर्द गिर्द ज्यादा अमीर लोग हैं, जिन साहिब इस्तात लोग हैं, उनके लिए नहीं होगा। लेकिन शेख साहब, मेरी आपकी इत्तला के लिए, आम आदमी जो दिहाड़ीदार है ना, और इवन तनख्वाहदार भी, उसके लिए ये मसाइल बहुत बड़े मसाइल हैं। इंसुलिन की, आपको पता है कि इंसुलिन की कीमत इस वक्त क्या कर दी आपकी हुकूमत ने? आपको मालूम है कि इस वक्त जान बचाने वाली ड्रग्स जो है उनकी क्या कीमत कर दी आपने? और अभी आपको बड़ा ख्याल आ रहा था, आपने पंजाब में तमाम तर जो इमरजेंसी जो दवाई दी जाती थी वो बंद है, टेस्ट किए जाते थे वो बंद है, इवन कैंसर की अद्वियात जो है वो हम फ्री दिया करते थे वो बंद है। और ये तो छोड़ो, फिर मुझे केपीके के एक मिसाली सूबे की बात करनी पड़ेगी। उस केपीके के मिसाली सूबे में स्ट्रेचर और व्हील चेयर लेने के लिए भी आपको 20 रुपए अदा करने होंगे। यह है मिसाली सूबा। और अभी जो आखिरी इत्तला भी मैंने देखी है थोड़ी देर पहले, वो ये है कि जो इनके दयानतदार, ईमानदार, ताबेदार जो हुकूमत है, उसके जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इलेक्शन कमीशन ने उसकी स्क्रूटनी कमेटी की जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक दफा फिर उसको मुलतवी कर दिया है। और ये जो ताबेदार, ईमानदार और पता नहीं कौन कौन से दार जो हैं, ये जो है ये यहाँ पर शराफत का लिबादा ओढ़ के बैठेंगे और दूसरों को चोर डाकू कहते थकेंगे नहीं, और ये नहीं बताएंगे कि खैरात का और ज़कात का पैसा जो है वो अलीमाबादी की सिलाई मशीनों से अरबों रुपया कैसे बनता है, ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि आप धरनों पे वो पैसे कैसे खर्च करेंगे, आप लेते तो चैरिटी के लिए, इस्तेमाल कहाँ करते थे। कुछ एनर्जी अज़मा रख लें 13 तारीख के लिए भी, आपकी बड़ी जरूरत है आपकी पार्टी को। हो गया। याकूब शेख साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जो आप किया करते थे ऑपोजिशन में, आज आपके साथ हो रहा है? बल्कि इनफैक्ट आपके साथ तो वो हो ही नहीं रहा जो आप किया करते थे। कहां से शुरू करूं? आपकी जबान, आप लोगों के सहाफियों के ऊपर तशद्दुद, आप लोगों के ऑब्वियसली वहां की इंतजामिया के ऊपर तशद्दुद। अभी तक इस तरह की कोई चीज इस ऑपोजिशन ने नहीं की है। बड़े पुरअमन किस्म की रैलीज और जलसे किए हैं। जी सर। सिविल नाफरमानी नहीं की है, बिल नहीं जलाए हैं भाई। महसूस में आप मुझे बोलने की इजाजत दीजिए अज़मा साहब। जी जी देखिए, महसूस करने की दुनिया, मैं तो महसूस हो रहा हूँ इनकी बातों से, जो ये बातें कर रही हैं, और ये पीछे नहीं मुड़ के देखते हैं कि क्या हुआ है इनके अदवार में। ये हमें मूरद इल्ज़ाम ठहराती हैं और बात ये ले जाती है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको सामने लेके आ जाती। जो माइक्रो लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं
وہ ان کو یاد نہیں آتے جو ان کے ادوار میں ہوتے رہے ہیں. میں یہ ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی حکومتوں نے پچھلے ادوار میں کیا وہ ہمیں آج ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر یہ آج ہماری حکومت ٹھیک نہیں کرتی بینش, میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آگے پھر ٹھیک نہیں ہونے والا. اور عمران خان کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ان کی ذات کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کی ذات کے اوپر یہ نہیں انگلی اٹھا سکتا کہ وہ پیسہ بنانے کے لیے آئے ہیں, وہ قوم کا پیسہ یہاں سے لوٹ کے باہر لے کے جائیں گے. ان کی ساری باتوں کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو انٹرویو ہے جو بی بی سی کو انہوں نے دیا ہے, وہ آپ اگر 2 منٹ کے لیے چلا کے دکھا دیں تو میرے خیال میں سارے سوالوں کا جواب ہے. پاکستانی یہاں سے جو بھی جاتا ہے, جو پاکستان سے جا کے دبئی میں اپنے کام سے جاتا ہے, وزٹ پہ جاتا ہے, وہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی پراپرٹیز ہیں ان لوگوں کی وہاں پہ. تو اگر یہ کہنا جی کہ میرا, وہ یہ کہیں کہ جی میرا ایک ہی گھر ہے اور میرا تو دوسرا کچھ ہے نہیں, میرا کوئی بزنس ہی نہیں ہے, اور سوکھے ہونٹوں کے ساتھ پھر جواب نہ دے سکنا, یہ سارے سوالوں کا جواب ہے. اس وجہ سے جواب ہے کہ آج ہم سے ہماری طرف آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی جاتی ہیں. آپ اپنے آپ کو بھی کلیئر کریں. ہم سے آپ 2 سال کا حساب لیتے ہیں, آپ اپنے 35 سال کا حساب بھی دیں کہ باری باری کے حساب سے آپ نے گورنمنٹ اسکیم, پھر ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات بھی لگائے, دفعات بھی بنائے, اور آج جو ایک سٹیٹس کو توڑ کے ایک جماعت آئی ہے جس نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے, پاکستان کو ایک ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. تو آج تو ظاہر ہے یہ پرابلم تو ہونی تھی, یہ تکلیف تو ہونی تھی. مجھے آپ کے توسط سے ان سے صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی 3 کنونسنگ باتیں بتا دیں, میں پی ڈی ایم کو جوائن کر لیتا ہوں. چلیں اب یہ میں پوچھ اچھی بات ہے ان چلیں پروگرام ختم ہونا ہے. لیڈروں روبینہ میں صاحبہ کیا اچھی آپ بات ہے, بتا ان دیں, کے لیڈروں میں روبینہ کیا صاحبہ ایسے ماضی میں انہوں نے کمال کیا, آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں پی ڈی ایم کو جوائن کر لیتا ہوں. پروگرام کلوز ہو رہا ہے. روبینہ سے روبینہ 3 پوائنٹس بتا دیں. جی بتا دیں. میں بالکل بتاتی ہوں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 7 سال سے آپ کی حکومت ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, اور بلا شرکت خیر حکومت ہے. جیسے ازما بخاری نے کہا کہ وہاں آپ نے کبھی دنیا میں کہیں نہیں سنا ہوگا کہ اسپتالوں میں جو ہے ویل چیئر اور جو اسٹریچر ہیں وہ کرائے پر دیے جائیں, اور وہ بھی فی گھنٹے کے حساب سے 20 روپے فی گھنٹہ. یہ آپ کی یہ پہلی پوائنٹ تو آپ یہ لکھ لیں اپنے پاس. آپ کو بہت چھوٹی بات نظر آتی ہوگی, لیکن جو بندہ سرکاری اسپتال میں جاتا ہے اور وہ جب گھنٹوں مریض کو لے کے اندر اسپتال میں پھرتا ہے, اور ہر گھنٹے کے بعد اس کے I'm so sorry guys, I'm so sorry, ٹائم ختم ہو گیا. میں انشاءاللہ روبینہ آپ سے تو لاہور میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور باقی یعقوب شیخ صاحب آپ کو بھی 13 تاریخ کے لیے آل دا ویری بیسٹ کہ آپ ان کے جلسے کو جو ہے بخوبی طور پر گزارا کر لیں. اس کا آپ لوگوں سے میں کل ملاقات کروں گی, سیم ٹائم سیم چینل. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے تینوں پینلسٹ کا شکریہ. اللہ حافظ.